guests, faculty members, and our fellow students. I, Navya Virmani, on behalf of Department of Media and Communication Studies, feel extremely honored to welcome you all to our distinguished corporate leader lecture by Mr. Dishant Phuria. Institutional Innovation Council IIC was established on 21st November 2018 at GIMS Vasanthkunj. Since inception of IICs by the Innovation Cell MIC as per the norms and directives of Ministry of Education, then Ministry of Human Resource Development MHRD. It is established to engage large number of faculty, students and staff in various innovation and entrepreneurship related activities such as hackathons, leadership talks, ideation, workshops, seminars in IDR, entrepreneurship and other competitive events to enhance the innovation and entrepreneurship ecosystem in the institute. Now, on behalf of GIMS Vasanthkunj, I welcome our guest, Mr. Dishant Phuria, an author and creative content producer by profession. High Hopes founder Dishant considers storytelling a unique art form. Having worked with various news organizations for over 9 years, PR was one of the aspects that he always found interesting, more so because he is a storyteller himself. Dishant wanted to help young businesses communicate their story effectively. He is keen to build brands with a unique communication strategy and an impactful story. A reluctant journalist, Dishant Phuria is also a new age writer born and brought up in New Delhi. He has successfully penned 3 fiction books, When Karma Goes Down, The Escape Route and Kaun Karma Kismat, of which The Karma Goes Upside Down was highly praised and still is a regular in the Amazon Top 100 list. Sir, we would like you to enlighten us with your encouraging words. Good morning guys, good morning. I think मेरा first guest lecture when first year में I think Jatin what's his full name? I can't recall that commentator. Jatin Chopru. हाँ. तो मेरा first guest lecture I think Jatin सबसे मैं लिया था. अभी भी आते हैं कि अब नहीं आते? आप तो बहुत करो. हाँ. तो वो he was the first guest lecture and उनसे मुझको जो सीखने को मिला ना first lecture के अंदर काफी सारी learnings मैं वो भी share करूँगा आप लोगों के साथ. There is nothing I am going to discuss today in this room which is centered around how to be a public relation officer or how to be a content writer or a writer. इस सब चीजों के बारे में बात नहीं करूँगा. I will discuss with you all through certain of my learnings that how I have become who I am. Fundamentally, I will tell you कि personality कैसे shape करते हैं. What is your personality? How you are supposed to build your personality? What is knowledge का आपकी life में क्या role होता है? डिसिप्लिन की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में और होलिस्टिकली आप हाउ डू यू बिकम अ होलिस्टिक ह्यूमन बीइंग समथिंग आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट ऑफ कोर्स थ्रू द जर्नी दैट आई हैव सीन. कैन आई यूज दिस? 2-4 चीजों के ऊपर मैं फोकस करूंगा और आई विल टेक यू टू द जर्नी दैट आई हैव हैड इन माय लाइफ और उसके अंदर 4-5 चीजों को पकड़ने की कोशिश करना. वन इज नॉलेज का क्या इंपॉर्टेंस है. Another is discipline की क्या importance होती है इसमें. Another major important is कि communication skills क्या है. इसके अंदर negotiation बहुत बड़ा रोल प्ले करता है actually. Communication skills at the end of the day, I will take you through it, but communication skills is another aspect of being a holistic human being if I may say so. 3-4 चीजें. Another very important aspect that I am going to take you through is कि resilience क्या होती है. ये सारे के सारे बहुत common traits हैं, but इनके basis के ऊपर in whichever career you guys will eventually land up in, whichever career you want to focus on, ये basics रहते हैं. 3-4 चीजें जिसके ऊपर I will take you through. 3-4 एग्जाम्पल्स दूंगा, 3-4 लाइफ की जर्नीज बताऊंगा जिससे तुम लोग समझ पाओगे कि तुमको आने वाले 10-15 साल के अंदर क्या करना है. I started my career. I think 2010 was when I started my career. I got an internship in Home Shop Italy. कॉलेज वालों से मैंने पूछा, सबसे बात करी और they said okay you can do it with limited boundaries.
So I started my internship in Home Shop 18, a very unique. Does anybody know Home Shop 18 है? Yes. हाँ, Home Shop 18 के अंदर मैंने internship करी. Positioning क्या होती है मेरे को उस समय समझ आया था. Positioning. So there are only two. There used to be only two channels, तीन actually, जो एक certain area के अंदर काम करते थे. So added advantage मिलती थी उन लोगों को जिन लोगों ने internship की हुई है, because there are only three channels. So the skill required to be in that channel is not with everybody. News channels बहुत सारे हैं, entertainment channels बहुत सारे हैं, but shopping channels, home shopping channels are very limited. दो channels होते हैं, Star CJ, Home Shopping. Then there used to be this Naptol. वो I think Times of India की print ads, and then they ended up being a YouTube channel also. यही तीन major competition होते थे. So if you are there, then the odds are that your job security is going to come your way. But उस समय I was very immature to understanding this. So I got in. 2 महीने मैंने internship करी वहाँ पे. उन लोगों ने मेरे को बोला कि यार आप join कर सकते हो. मैंने बोला full time course join नहीं कर सकता. I have a college. But 2 महीने के अंदर job offer हो गई. I became very confident कि यार Home Shop 18 के अंदर 2 महीने के अंदर नौकरी मिल गई है second year के student को. मुझको उस समय इस बात की sense नहीं थी कि I am being asked to get this job or I am being asked to be a part of this job because there are only 2 channels in India. Hence, whoever is doing an internship in that channel will get an added advantage of understanding a skill which not everybody on this planet has. इस वजह से मुझको जॉब की प्लेसमेंट हो गई थी. But for me to get a job in second year made me a very immaturely confident human being. So confidence एक चीज होता है, बट उसको आप अपनी इमेच्योरिटी के साथ इवेल्युएट कर दो तो वो इट गेट्स वेरी डिस्ट्रक्टिव. तो आई वाज ऑफर्ड, आई टुक सम टाइम. 1 महीने मैंने इंटर्नशिप खत्म करी. उसके बाद फिर मैंने फिर इंटर्नशिप वहाँ पे ज्वाइन करी. आई डिडंट टेक द जॉब, बट आई आस्क्ड दैट आई वांट टू स्टिल रिमेन इंटर्न बिकॉज आई कांट टेक इट. उन लोगों ने इंटर्नशिप करने दी मेरे को, और उसके 2-3 महीने के बाद फिर से आई वाज ऑफर्ड द जॉब again, and I said, okay, I will take it. Now, during that course of time, when you are employed, then internship और employment के बीच में difference समझ आना शुरू होता है. When you are doing an internship, you are fundamentally focusing on being a learner. और जब आप learner होते हो तो आपके ऊपर responsibility कोई नहीं होती. But जब आप job करते हो तो responsibility बहुत आती है. जब मैं internship करता था तो मैं सब कुछ कर देता था, but if I have done something wrong, I am not answering. But when you are doing a job, then that means it has become your responsibility. So during my internship, I would go maybe 12:30, 1 o'clock office जाता था. Although office के अंदर साढ़े 10 बजे पहुँच गया, but I would be there 12:30, and I would say I am an intern, and they would also not say much to me. But जब नौकरी ज्वाइन कर ली तो वो expect कर रहे हैं 10 o'clock का. I am not used to it. Now why I am telling you this is fundamentally that इसका लाइफ में क्या रोल होता है. So the learning that I am trying to give you is I had no discipline. I may have the skills which I had learned during my internship, but this was one major important aspect missing out of my life. इसकी वजह से 2 महीने के अंदर I got fired. क्योंकि मैं टाइम पे नहीं आ पा रहा था. मेरी प्रायर कमिटमेंट्स जिनकी शायद उस समय लाइफ में जरूरत थी नहीं थी, आई डोंट नो, बट आई हैड सर्टेन अदर प्रायर कमिटमेंट्स व्हिच वर फ्रैंकली नॉट इंपॉर्टेंट, बट उस समय समझ नहीं आया. So I will leave early also. If I am being given a task, I may do it half-heartedly, or I may not put as much amount and intent that is required when you are doing a job. उसकी वजह से 2 महीने के अंदर I was asked to leave. On top of it, I was asked to leave on a bad note, which means my access to that particular sector industry became X. So now I couldn't be a part of Home Shop 18, and if I have to go to Star CJ and I tell them I have the skills but the company fired me on disciplinary ground, I will not get hired. तो मैंने अपनी लाइफ का 1 साल, ऑलमोस्ट 1 साल, 6-7-8 महीने, 1 साल समझ लो, उस चीज को दिया, और वो स्किल मैंने एक्वायर करा, वो अंडरस्टैंडिंग एक्वायर करी. बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन, नो लॉन्गर आई कुड बी अ पार्ट ऑफ इट.
when you are first time when you are getting internship, it's a great opportunity. फर्स्ट टाइम जब जॉब मिल रही होती है बहुत अच्छा लग रहा होता है कि यार 20 साल की उम्र में जॉब मिल गई। और उस समय आप तो खैर यू गाइज कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। उस समय हम लोगों का सोल मोटिव ये होता था कि किसी तरह की नौकरी मिल जाए। दैट इज व्हाट वी लीव टू लाइक द पर्पस ऑफ कमिंग टू अ कॉलेज और पर्पस ऑफ कमिंग टू एन इंस्टीट्यूट, ऑल द लर्निंग्स वर सेंटर्ड अराउंड हाउ विल वी गेट प्लेस्ड। आई एम अज्यूमिंग नॉट ऑफ माइंड्स हैव चेंज्ड नाउ, यू वांट टू बी, you will have your own shape and size and paths to take, but उस समय ऐसा नहीं था, हमको नौकरी चाहिए होती थी। एक पूरी की पूरी एक साल पर when this hits you, when your first job is being asked to leave because of disciplinary measures, it is a very very bizarre feeling। but अब मैं तुम लोगों को बताऊं कि शायद मेरी I have done 9 to 10 jobs in my life अभी तक, जो भी मेरा लिमिटेड कैपेसिटी में मैंने काम किया है। तो अब ये चीज मेरे को फ्रैंकली बॉदर नहीं करती है, बट उस समय ये बहुत ही बड़ी चीज थी। एंड at your age, especially at your age, we attract a lot of outward understanding of how we are supposed to live life. So if I would tell my parents that I was thrown out of a job, will they accept it? You think they will accept it? They'll be like, "यार तो है ऐसा." And that is what their attitude is. They're like, "यार ठीक है, मतलब मिल गई हमको इसी चीज से, हैरानी चीज नहीं है तो." So you cannot share the kind of emotion you are dealing with them. दोस्तों के साथ नहीं शेयर कर सकते क्योंकि एक सेंस ऑफ जेलेसी होती है, स्पेशली एट योर डे एंड एज। इंस्पिरेशन और जेलेसी के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं लोग। तो देर मिले, हाँ ठीक है चलिए, अच्छी बात है, हम तो यहाँ लग गए, हम तो वहाँ लग गए, हम तो ये कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि आई वॉज नॉट पंचुअल इन माई लाइफ। ये तो कभी नहीं होता। वही होता है, इट्स अ लर्निंग पाथ, इट्स अ लर्निंग पाथ। तो ये हुआ। नाउ आई एम, माय कॉन्फिडेंस इज एट एन ऑल टाइम लो एंड मुझको आगे नहीं पता क्या करना है। अकेडमिकली मैं कभी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। सर विल वैलिडेट, thank you will validate, we are doing batchmates. So academic pursuits were not, I was always more of a practical learning human being. इसके ऊपर मेरा बहुत ज्यादा फोकस रहा है। Now I'll share you, fundamentally I'll try and explain you what the importance of knowledge in your life is for every how your personality becomes holistic only if you have knowledge. यहाँ से इस चीज से, इस लेसन से मुझको सबसे पहले ये बात, इस चीज की नॉलेज मिली, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग मिली that you are supposed to be punctual in your life. People will not, if you are working for someone, you are working for, your work is supreme और the other person is, हमको लगेगा हमको ग्रांटेड लिया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। ट्रुथ इज काम से ऊपर कुछ भी नहीं होता लाइफ में, और वो लर्निंग आने में बहुत टाइम लगता है। आई रियली एक्सपेक्ट तुम लोगों को जल्दी आ जाए, और इसका रोल क्या है मैं तुमको अब ये बताता हूँ। As I was doing my, 2-3 चीजें मेरी लाइफ में अच्छी थी कि I have been a son of a government servant. My father has been an income tax officer. तो बचपन से मेरे अंदर एक चीज इम्बाइब की गई थी, which is you have to read newspapers. और frankly I तो मतलब because I was academically not very strong, तो मैं कभी किसी का शेयर नहीं करता था ये बातें। But I have always been a very avid newspaper reader. रीडिंग मेरी बहुत एक फंडामेंटल कोर ऑफ लाइफ था हमेशा। मैं स्कूल के अंदर न्यूज़पेपर पढ़ता था, मेरे घर के अंदर तो फंडामेंटली 4 न्यूज़पेपर अभी भी आते हैं। और आई टिल डेट नाउ आई मीन पीआर, सो माय वर्क इज सेंटर्ड अराउंड व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। सो न्यूज़पेपर राइट नाउ आल्सो आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ। बट न्यूज़पेपर्स मैंने 3 न्यूज़पेपर्स आते थे मेरे घर, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द हिंदू। हिंदी न्यूज़पेपर आता था बट वो मैं पढ़ता नहीं था, नो स्पेसिफिक रीजन, बट मैं नहीं पढ़ता था। इन 3 न्यूज़पेपर्स को मैंने रोज आधा घंटा 45 पढ़ा। आई हैव ऑलवेज रेड न्यूज़पेपर। उसकी वजह से मेरा नॉलेज पूल हमेशा बढ़ता रहता था। माय अंडरस्टैंडिंग नॉट ओनली टुवर्ड्स इकोनॉमी बट टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, टुवर्ड्स करंट अफेयर्स, टुवर्ड्स जियोपॉलिटिक्स, एवरीथिंग होलिस्टिकली। और अनलाइक नाउअडेज उस समय कंटेंट ज्यादा नहीं होता था। अब तो खैर कंटेंट, इनफैक्ट जर्नलिज्म टू अ सर्टेन एक्सटेंट कंटेंट बन चुका है, दैट्स अ सेपरेट कन्वर्सेशन। बट
4-5 न्यूज़पेपर्स मैंने स्टार्टिंग से पढ़े और उसकी वजह से मेरा नॉलेज पूल बहुत ज़्यादा, सो आई यू मेक मी टॉक टू समबडी, you put me into a situation where some kind of intelligent insight is required, I would be able to accept. And it was very subconscious because I was also not aware that I may have the hold on knowledge and I may have insightful understanding of what's going on this planet, much more than others, because I was in news. अब इसका फायदा क्या होगा? जब मैं IBM 7 नाउ आई थिंक IBM 7 का नाम बदल गया है, पता नहीं क्या नाम, नेटवर्क 18 का एक चैनल है, IBM 7 होता था, आई थिंक अब IBM न्यूज़ 18 हो गया शायद, न्यूज़ 18 नाउ। उस समय राजदीप चंद्रधर है, आशुतोष यूज्ड टू बी देयर, राजदीप चंद्रधर यू गाइस नो, है ना, वेरी पॉपुलर थे। He used to be the chief editor of CNN IBM. There used to be आपका एक आम आदमी पार्टी का एक फेस होते थे आशुतोष, उस समय वो वहाँ के मैनेजिंग एडिटर होते थे IBM 7 के। So I knew somebody, so I used my connects in the media industry to get an internship there. तो connects की बहुत इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में, इस बात को अंडरमाइन मत करना। तो connects और networking वो हैंड इन हैंड। अगर मैं शायद my cousin used to work in Z News, तो उनकी वजह से न्यूज़ 18 और CNN Z News बिल्कुल आने वाले। If you guys have been to Film City, नहीं पता होगा तो Film City जब भी जाओगे, Z News का ऑफिस, Z News is right, IBM 7 is left। तो खैर वो लोग जानते थे एक दूसरे को, he somehow got me into न्यूज़ 18। बहुत प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, कनेक्ट की इंपॉर्टेंस होती है। तो ये मत सोचना कि यार इसके कनेक्ट है इसलिए मेरे साथ ये नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ, जिसके कनेक्ट है अच्छी बात है, तुम लोग अपने कनेक्ट बनाना है। Because of that I got internship. I think ये second year का fourth semester है। CNN IBM के अंदर मैंने internship अपनी start करी। I was very able to pick up on news. Very easily I was able to pick up on news of what these people are doing, fundamentally because knowledge था। तो already जो television के ऊपर जो भी output, so I used to work in our internship करी थी मैंने। So there are two major stages, inbound input and output. So I used to work in the output team. आउटपुट टीम का क्या काम होता है? whatever you are seeing on television, so input के पास for example इतना information है, आउटपुट डिसाइड कर रहा है कि इतना information में से सिर्फ इतना जाएगा। So that is fundamentally what output does. So whatever you see on television has been pre-decided by the output team. न्यूज़ चैनल्स के अंदर ऐसे चलता है, अब तो मेरे को पता नहीं किस तरीके से, उस समय ऐसा होता है। So from there, I got into output team. I knew कि यार ये चीज़ की ज़्यादा वैल्यू है, इस चीज़ की कम वैल्यू है, and I was able to give my understanding to the larger team who was working there during my internship. Hence, they also started seeing value in what I bring on the table. I think 2010 was when I started my career. I got an internship in home shopping. कॉलेज वालों से मैंने पूछा, सबसे बात करी और they said okay you can do with limited boundaries. So I started my internship in home shop editing, a very unique. Does anybody know home shop editing है? Yes. हाँ, home shop editing की तो मैंने internship करी। Positioning क्या होती है मेरे को उस दिन उस समय समझ आया था positioning. So there are only two channels, 3 actually, जो एक certain area के अंदर काम करते हैं। So added advantage मिलती थी उन लोगों को जिन लोगों ने internship की हुई है, because there are only 3 channels. So the skill required to be in that channel is not for everybody. News channels बहुत, but shopping channels, home shopping channels are very limited. 2 channels होते हैं, Star City and Home Shopping. Then there used to be this Nagpur, who I think Times of India team, Print Ads, and then they ended up being a YouTube channel also. यही 3 major competition होते थे. So if you are there, then the odds are that your job security is going to come your way. But उस समय I was very immature to understanding this. So I got in. 2 महीने मैंने internship करी, उन लोगों ने मेरे को बोला कि आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं बोला full time कॉलेज नहीं कर सकता, I'm college. But 2 महीने का जब जॉब ऑफर हो गया, I became very confident कि यार होम जॉब टीम के अंदर 2 महीने के अंदर नौकरी मिल गई है सेकंड ईयर के स्टूडेंट को। मुझको उस समय इस बात की सेंस नहीं थी कि I am being asked to get this job or I am being asked to be a part of this job because there are only 2 channels in India. Hence, whoever is doing an internship in that channel.
will get an added advantage of understanding a skill which not everybody on this planet. इस वजह से मुझको जॉब की प्लेसमेंट हो गई थी. But for me to get a job in second year, gives me a very immaturely confident human being. So confidence एक चीज होता है, but उसको आप अपनी immaturity के साथ evaluate कर दो. So वो it gets very destructive. So I was offered, I took some time. एक महीने मैंने internship करने में खत्म करी, उसके बाद मैंने फिर internship वहाँ पे ज्वाइन किया. I didn't take the job, but I asked that I want to still remain at intern because I can't take it. उन लोगों ने internship करने दी मेरे और उसके 2-3 महीने के बाद I was offered the job again, and I said okay, I will take it. Now during that course of time, when you are employed, then internship और employment के बीच में difference समझ आना शुरू होता है. When you are doing an internship, you are fundamentally focusing on being. She was my mentor. I used to work next to her. Meenakshi got pregnant, and because she got pregnant, I was the only one who knew what Meenakshi does. Luck. Knowledge तो थी, but luck. She got pregnant and she said कि मुझको 2-3 महीने की छुट्टी चाहिए. Her husband was in Bengal, so she wanted to go to Bengal. So I work from home कुछ नहीं करता. So she sort of decided that she will be leaving, and she said कि निशान का तेरे ना कर देती हूँ, because मैं बात करी, I was offered a job 14,500 लाख रुपए मिल रहे थे, 14,000 के आसपास, but anyway money was not a priority. Getting a job was in itself a big thing. I got that job. I worked there for good 4-5 months. उसकी वजह से academically मैं काफी ट्यून हो चुका था. Already एक तो average performer था, but academically ट्यून हो रहा था. But the good thing was news channel के अंदर काम करने से knowledge, insight, understanding of life बढ़ती जा रही थी. So as a human being holistically, I was developing myself. 4-5-6 महीने आई जॉब करी वहां पर. उसके बाद फिर एटीट्यूड इश्यूज जो यहाँ पे भी हुए थे. एटीट्यूड इश्यूज क्या होते हैं कि किसी ने मेरे से ऐसे कैसे बात कर दी. हाउ आर माय सीनियर्स, माय सीनियर्स कैन टॉक टू मी लाइक दिस. व्हाई आर दे टॉकिंग टू मी सच टू. मेरे को नाइट शिफ्ट क्यों डाल दी है. इंटरेस्टिंग केस हुआ था एक्चुअली, जिस वजह से मेरी जॉब गई थी. आई वाज पुट इन अ नाइट शिफ्ट बिकॉज I don't know what happened, but I was put in a night shift. 11 बजे की मेरी शिफ्ट थी and morning 11 to 8 I was supposed to do that shift. ऑफिस में शायद 3-4 लोग ही होते थे, मतलब वो ऑलरेडी एक फीड जारी होती है, वो रिकॉर्डेड फीड चलती रहती है. तो हम लोगों का काम सिर्फ मॉनिटर करना होता है. तो 11 to 8 की शिफ्ट मेरे को दी. I was not used to it, और ऊपर से मैं कॉलेज में भी था. I was not used to it. 15-20 दिन 1 महीना टॉलरेट किया. एक दिन मैं बाहर गार्ड के पास चला गया. गार्ड से मैं बात कर रहा, गार्ड से कैजुअली पूछा कि सोते कहाँ पे हैं, तुम लोग क्या करते हो, क्योंकि गार्ड तो वहाँ पे सो जाते थे. 4-5 गार्ड होते, एक आधा गार्ड होते सो रहा. तो मैंने उनसे कैजुअली पूछा कि तुम लोग क्या करते हो बोलने के लिए. तो उन्होंने बोला सर कि ये सोफा लो, यहाँ पे सो जाओ. मैं बोला अच्छा ठीक है. I took a nap. Now the nap got recorded in camera. I didn't know there was a camera. And I was asked that what was I doing. तो मैं लगभग 4-5 बजे से सोए थे और मैं 2 मिनट के सो गया था. उसके बीच में हुआ क्या, किस पर आगे होती है. बिटकॉइन के साथ एक प्लेटफॉर्म आया था, कीटो डैश वाला, कीटो नहीं, केटो वाज सेम प्लेटफॉर्म, बट कुणाल कपूर का नाम जानते हो. कुणाल दी एक्टर, कुणाल कपूर का प्लेटफॉर्म था. कुणाल कपूर के प्लेटफॉर्म ने ही हैड मनी, ही हैड एवरीथिंग. तो हमारा प्लेटफॉर्म इवेंचुअली डाइड ऑफ होना शुरू हो गया था. मैं क्या तब तक चला गया था, ऑल्सो, बट दैट प्लेटफॉर्म टुक ओवर अगेन. फ्रॉम देयर आई डिस्कवर्ड कि स्टार्टअप होती क्या है. इसके बीच में मैं बहुत सी चीजें काफी कुछ करता रहा, बट आगे करते चीज मैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में काफी कुछ आई थिंक बताया. यहाँ मेजर कम्युनिकेशन स्किल्स आप कब सीखते हैं, जब अपने हाथों को आपने खोल लिया. बाय दैट टाइम यू हैव 10 हैंड्स. यू आर आल्सो मार्केटिंग, यू आर आल्सो डूइंग सेल्स, और आप सबसे सीख रहे हो, और सबसे आर्ट ऑफ नेगोशिएशन सीख रहे हो. आप किसी भी कस्टमर से बात कर रहे हो, दैट इज अ नेगोशिएशन. यू आर टॉकिंग टू योर सीईओ, दैट इज अ नेगोशिएशन. तुम लोग अगर अपनी फैकल्टी से भी बात करते हो तो वो नेगोशिएशन होती है. 5 मिनट पहले 5 मिनट लेट आ गए, सॉरी, बट देन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर फैकल्टी
will accept it or not. Right? That is what you are doing. Faculty is also like yes, negotiation. There is a negotiation going on, right? Fundamentally, communication skill is an art of negotiation. कौन negotiation जीतेगा वही communication. और इसका इम्पोर्टेंस आगे जाके तुम लोगों को सबसे ज्यादा तब पड़ेगा जब प्रैक्टिकल एवोल्यूशन ऑफ सेल्स हो. तो जब तुम लोग सेल्स को समझोगे तब तुमको समझ आएगा कि नेगोशिएशन का क्या इम्पोर्टेंस है, लाइफ में आगे कैसे बढ़ते हैं. But I'm cutting the chase now. I will come to how I started my own organization called High Hopes. High Hopes के बारे में तुमको कुछ चीजें बताया. I started High Hopes in June 2020. Right now we are a team of I think 25 people. स्टार्ट कैसे की थी और एक पूरी लाइफ का कर्व हाई होप्स तक कैसे पहुंचा मैं तुम लोगों को ये बता दूं. 20 के लोग हैं जिनका हम टीम बन चुके हैं. I have worked with 200 in 3 years. मेरी कंपनी ने लगभग 200 स्टार्टअप्स के साथ में काम किया, लगभग 200. और we have a standard retainer of 20-25 businesses that work with my organization. अब ये शेप अप कैसे हुआ मैं तुमको ये बताऊं. लाइफ में बहुत कुछ कर रहा था, 3 नॉवेल्स लिख चुका था, न्यूज चैनल्स में काम कर चुका था, बहुत सारी जॉब्स कर चुका था. बट अब आप 8-9 साल 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हो तो आपकी ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ यू आर एज अ ह्यूमन बीइंग चेंजेस. अब आप सिर्फ नौकरी के बारे में नहीं सोच रहे, अब आप सोचोगे यार पैसा कैसे कमाते हैं, दुबई का ट्रिप कैसे लेते हैं, गाड़ी कैसे खरीदते हैं, घर की EMI कैसे पे करेंगे, शादी करनी है. तो ये सारी चीजें दिमाग के अंदर आ रही होती है. तो up till 23-24 और आई थिंक आप लोगों का भी शायद होगा कि आई विश ऐसा ना हो. You guys understand the nuances of life much more earlier than I do. But basic stage तो कुछ साल से गई हो जाए कि जॉब मिल जाए, काम मिल जाए, learning मिल जाए. From there you are now at okay, I have to deal with a lot of things. Learning is okay, I have learned enough. But how to become a relatively stable human being? इसलिए बहुत से आइडियाज डिस्कस कर रहे हो. सो आई वाज सिटिंग विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स and she told me that she has 2 businesses. She's a so my co-founder of the team of my organization is also she used to be head of communications at Indian Angel Network. Does anybody know Indian Angel Network? नहीं पता. ठीक है. Basically Indian Angel Network startups को फंड करता है. Communications in Indian Angel Network. Does anybody know Indian Angel Network? नहीं पता होगा. ठीक है. Basically Indian Angel Network startups को फंड करता है. तो अगर तुमको पैसा चाहिए तो तुम Indian Angel Network के पास अपनी पिच लेके जाओगे, अगर उनको पसंद आएगी, उनको समझ आएगा तो वो स्टार्टअप को पैसा देंगे in return of equity or debt or venture in whatever shape and form. So she used to lead communications there. Now because she was leading communications there, she used to interact with a lot of startups there. I coming from some sector, I was sitting with her. मैंने उसको बोला कि यार देखो ये कर रहा हूँ अभी लाइफ में, what is going on? She said she told me this is during COVID. She told me that she has a client. She told me she has a client apart from her business which she is working with. Is this company called Gramophone. Gramophone agriculture के अंदर है, agriculture. तो आजकल हर कंपनी का टेक्नोलॉजी आपको मिलेगा बिकॉज़ majority startups are centered towards technology. So she had started working with a company called Gramophone, and she was getting a lot of inbounds to do public relations for them. Public relations क्या है? प्रेस रिलीज निकालना, मीडिया को जाके बताना कि हम लोग क्या कर रहे हैं. बहुत सिंपल टर्म्स में तुमको समझाऊं PR क्या होता है. मीडिया के साथ आपके क्या रिलेशन है वर्सेस the kind of information you want the world to see. That is बाकी तुम लोग ऑफ कोर्स कैजुअली नो हाउ समझ आएंगे यही होता है. सो शी हैड अ बिजनेस दैट शी वाज वर्किंग विद एंड शी सेड यार आई हैव 2 more leads but I do not have the time to do it. And I had written my third novel. I was not planning to write another. So I had because I had written 3, I was exhausted selling them, doing whatnot. But I was like, I have done 3, I can't do any more now. I need something else. She said, can you help me? I said, okay, I will help you. She said company बनानी पड़ेगी. So because I was writing, so I had a registered firm. मेरी बुक्स की जो रॉयल्टी आती थी वो उस कंपनी के थ्रू रूट होके मेरे पास आती थी. So she said I need a company. I said I have a company.
we can just start working and start operating our business through that company. And see that, okay, so we build our email addresses and whatnot. उस समय मेरे को कुछ नहीं पता था कि मैं किस चीज़ के अंदर एंटर कर रहा हूँ. तो आई थिंक जब मैंने स्टार्ट किया था, राइट नाउ मेरी आई थिंक कंपनी की नेटवर्क इज अराउंड, और मैं नंबर तुमको बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ, 10 CR इज द नेटवर्क ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन. ये उस समय मेरे को नहीं पता था मैं किस चीज़ के अंदर एंटर कर रहा हूँ, बट मेरे को मार्केट डायनामिक्स समझने थे. और मार्केट डायनामिक्स अगर आप किसी चीज के अंदर आते हो तो आपको समझना शुरू होता है, उससे पहले नहीं समझना. 2 क्लाइंट्स आए हैं, मैंने उनके साथ में काम स्टार्ट किया. इंटरेस्टिंगली हो क्या रहा था कि जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी उस समय स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ज्यादा बूम हुआ. सो द बूम वाज सो रैपिड दैट नोबडी न्यू व्हाट्स गोइंग ऑन, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड. कोविड के टाइम पे जितनी स्टार्टअप बनती मैंने जितने आई थिंक मैं पर्सनली, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया, 2-3 साल के अंदर 200 कंपनी से मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया. और वो क्या रहा था किसी को समझ नहीं आ रहा था. आई जस्ट केप्ट ऑन डूइंग सर्टेन थिंग्स व्हिच वर राइट. तो हम 2 लोगों ने स्टार्ट किया. अब क्या करें. आई यूज्ड टू मीट अ फ्रेंड हु वाज आई थिंक 23-24 years old, एंड ही वाज लुकिंग फॉर अ जॉब. तो अब वो बाय द वे एबीपी चैनल के अंदर काम करता है, बट उससे उसको जॉब चाहिए थी. मैंने उसको बोला कि मेरे साथ काम करिए, तो पूरा ठीक है कर लो. And he started working with me. और वहां से 2 क्लाइंट से 6 से 7 क्लाइंट्स के ऊपर आ गए. और कंपनी अब 1 एम्प्लॉय से आई हैड अनदर 2 पीपल कंपनी, हम 5 लोगों की टीम बन गए. और क्लाइंट्स आ रहे थे, काम कर रहे थे, और बहुत कुछ हुए जा रहा पता नहीं चलता. अब मैं what I'm focusing right now is on resilience. रेजिलियंस के बारे में बात करूंगा. ये तुम्हारी आई थिंक लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर कोई बनेगा तो वो है रेजिलियंस. रेजिलियंस का मतलब समझते हो? रेजिलियंस का मतलब बताएगा मुझे? एनीबॉडी प्लीज. रेजिलियंस गाइस कम ऑन. डिटरमिनेशन, विल डिटरमिनेशन. इसके अंदर मैं काफी सारी बातें ये भी करूंगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को समझने के लिए कितना टाइम लगता है, मतलब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कहां तक इजी रख सकते हो वो तुम्हारे ऊपर होता है. क्योंकि स्पेशली द काइंड ऑफ बिजनेस आई डू, यहाँ पे रोज सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाएगा. अभी मैं तुमको अगर अपनी क्लाइंट को सुना दूंगा उसके लिए क्या बोलेगा, एंड आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी, तो इमेजिन व्हाट पीपल हु आर वर्किंग फॉर यू वुड डू. बट मुंह बंद रखते हैं और सुनते रहते हैं. एनीवेज, कटिंग दिस थिंग, 7 से 8 स्टार्टअप मेरे साथ में काम करना शुरू हुई. हो क्या रहा था, जो कॉर्पोरेट्स हैं, एड फैक्टर्स का नाम सुना है किसी ने? एनीबॉडी नोज अबाउट एड फैक्टर्स? परफेक्ट रिलेशंस, सारी पीआर, बहुत बड़ी पीआर कंपनी है. एडलमैन का नाम सुना है? चलो अच्छी बात है. तो ये 4-5-6 बिग पीआर फर्म्स है, कम्युनिकेशन फर्म्स है इन इंडिया, एंड दे आर नोन वर्ल्ड आल्सो, थ्रू आउट द वर्ल्ड. ये लोग एक्चुअली हो क्या रहा था. So I was building, when I started building my startup, I understood 2 things, important things. One, the kind of budgets and ad factors is asking, that budget a startup cannot afford. At the same time, a startup needs the services which public relations से जो मिलती है, but वो लोग ad factor के पास नहीं जाते क्योंकि वो महीने का कुछ लेकर बोलते हैं, माशाल्लाह होता है, और इनको जरूरत है. इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा गैप बन गया है. गैप बन गया है, स्टार्टअप को काम की जरूरत है, एड फैक्टर्स केटर नहीं कर सकता उनको क्योंकि वो फंड्स बहुत ज्यादा मांगते हैं. देन कम्स इन हायर. तो जो स्टार्टअप है ऑलरेडी, जिनको पीआर की जरूरत है बट उनके पास बजट्स नहीं है और उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है पीआर की. सो सैमसंग नोज व्हाट पीआर इज एंड हाउ टू यूज इट. आपकी पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि पीआर की इंपॉर्टेंस है और उसको यूज कैसे करना है, बट एक स्टार्टअप जिसने स्टार्ट करी है 2 साल हुए, 3 साल हुए, उसको पता ही नहीं है पीआर होता क्या है. मेरे को अपनी कंपनी बनाने में पीआर कैसे हेल्प करेगा, उसको वो चीज नहीं करो. 2 फंडामेंटल, वन द बजट दैट द कंपनी कैन नॉट अफोर्ड, एंड सेकंड ना मेरे को टाइम देना है. ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ. हाँ,
तो दो चीजों के ऊपर मैंने फंडामेंटली कंपनी को बनाना शुरू किया। अब मेरे को समझ आ रहा है कि वो क्या है, क्योंकि आई एम टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स फंडामेंटली डायनामिक होती है नेचर। दे डोंट हैव पॉलिसीज, दे डोंट हैव प्रोसेसेस, they only have a vision and an optimism to go out in the world and figure something out. इन कंपनीज के साथ मैंने PR करना शुरू किया एंड माय कंपनी नेम स्टार्टेड स्प्रेडिंग थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। 6-7 महीने इन आई एम ऑन स्काई 9 ऑनेस्टली, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना कुछ देखा भी नहीं था और अचानक से कंपनी बन गई। आई एम एम्प्लॉइंग पीपल, देयर आर स्ट्रक्चर्स, आई हैव एन ऑफिस। इट वॉज वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। 6 महीने के बाद बहुत ही ट्रैजिक सीन हुआ और जिसने मुझको न्यूएंसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सिखाए, न्यूएंसेस ऑफ रेजिलियंस सिखाए कि रेजिलियंस होता क्या है। और ये रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन, फोकस, विल तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा काम करेगा। मैं काम की तो बात ही नहीं करूँ। आफ्टर 6 months माय को-फाउंडर, जिसको इस बिजनेस और PR के बारे में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी क्योंकि मैं कंटेंट जर्नलिज्म के बैकग्राउंड से आता था, she was the one who knew what PR is. Her father got third stage cancer. और after she got cancer, उसकी involvement and by the way that girl is now my wife. So my co-founder became my wife. वो भी एक story है, but I will park that aside. Her father got third stage cancer और उसकी the day she got cancer, her जितना काम वो कर सकती थी वो उतना काम नहीं कर पा रही है। At the same time, I have a personal connect to her, so my understanding, my time is now going more towards taking care of that person, taking care of my now wife, then girlfriend, and of course my co-founder. और कंपनी चलानी कैसे मेरे को पता ही नहीं है क्योंकि वो काफी कुछ कर रही है, उसने काफी चीजें पकड़ रही है। मैं सिर्फ कंटेंट कर रहा हूँ, मीडिया से थोड़ी बहुत बात कर रहा हूँ, बट PR के न्यूएंसेस मेरे को नहीं पता। सो फॉर मी टू नीड हर बिकेम वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और मैं 6 महीने आया हूँ, आई हैव 15 क्लाइंट्स टू केटर, आई हैव 7 एम्प्लॉइज टू टेक केयर ऑफ, एंड आई डोंट नो ये सब कुछ अकेले कैसे करते हैं। एक टाइम आया कि लगभग 2-2.5 महीने हर इनपुट to the organization for of course all the right reasons was very 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 limited और मैं अकेले सब कुछ करने की कोशिश कर रहा था और मुझको नहीं आता था। तो आप एक इंडिविजुअल से बात कर रहे हो जिसको मार्केटिंग भी करनी है, जिसको सेल्स भी करनी है, जिसको ह्यूमन रिसोर्स भी करना है, जिसको कंटेंट भी क्वालिटी प्रोड्यूस करना है और अल्टीमेटली बिजनेसेस को रोकना भी है। ये सब कुछ मैं अकेले सिर्फ और सिर्फ इस रीजन से कर रहा है। मैं कर क्या रहा था, मेरा डे का शेड्यूल क्या होता था, आई वुड गेट अप, आई थिंक आई वुड बी अप बाय 6-7 in the morning. I would first go and pick up my co-founder. We would then go to the hospital, take her to see her father. उसके बाद मैं ऑफिस आता था, she would stay there. I would work till 8-9 at night. घर जाता था, खाना खाता था, फिर काम करता था। Trust me, I have रात को 3-3 बजे भी मैंने मेल्स आप नहीं करता हूँ, बट पहले कम से कम 5-6 महीने मैंने रात को 3-3 बजे भी अकेले बैठ के काम किया, so that the responsibility that my company holds stays. क्योंकि मेरे को पता है कि एट द एंड ऑफ द डे देयर इज एन एम्प्लॉय सिटिंग देयर, देयर इज अ क्लाइंट आई नीड टू टेक केयर ऑफ। ऑन टॉप ऑफ इट आई अंडरस्टैंड कि मैंने जिस स्पेस को पकड़ा है, जो एड फैक्टर्स मिडलमैन नहीं केटर कर पा रहे, अगर मैंने आज ये चीज करनी छोड़ दी तो कोई और करेगा। देयर विल बी समवन एल्स, राइट? देयर विल बी अदर हाई होप्स इफ आई एम नॉट देयर, क्योंकि उन लोगों को तो अपना काम चलाना है, तो मेरे को तो सब कुछ करना ही पड़ेगा, लाइक इट और हेट इट। तो मैं रात को 3-3, 4-4 बजे अंडर इमेंस स्ट्रेस काम कर रहा हूँ, अंडर इमेंस स्ट्रेस। ना मुझको किसी एम्प्लॉय से बात करना आता है, ना मुझको ह्यूमन रिसोर्स के न्यूएंसेस पता है, ना मुझको कंपनी कैसे चलती है ये पता है। तो कंपनी चलाने के लिए बहुत सारे कंप्लायंस होते हैं, टन्स ऑफ, मेजॉरिटी टाइम ऑफ द फाउंडर्स गोज इनटू हैंडलिंग कंप्लायंसेस, कि टैक्सेस कैसे से बचाने हैं, कंपनी को टैक्सेस कैसे पे करने हैं, क्लाइंट्स के साथ में डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है। ये बहुत, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन। प्रैक्टिकली 10 साल लगाने पड़ते हैं और वो भी कम पड़ते हैं। उसके लगभग एंड आई एम 6-7, हर फादर फाइनली 1 साल के बाद हिज फादर एक्सपायर्ड और वो 1 साल तक हर इन्वॉल्वमेंट इन द बिजनेस वाज वेरी जीरो और इमोशनली वो भी वल्नरेबल, आई एम आल्सो वल्नरेबल, बट एट द सेम टाइम आई हैव टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन।
तो no matter what emotions, whatever you are dealing with, company will not stop. Hence, your maximum aptitude of resilience, determination cannot stop. क्यों? क्योंकि मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, कोई और होगा ना. तुम लोग अभी 4-5 साल के बाद तुम लोग बोल रहे हैं हम लोग भी हाईवे बना लेते हैं, then you will be my competition, then I will be dealing with you guys. तो ये कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा होगा. When you are going in to be a maybe a content creator, maybe a journalist, you need to know कि तुमसे पहले वहाँ पे 500 लोग हैं. No matter how many connects you have, no matter how sharp you are, whatever you are doing in your life, there are still 500 people who are bigger, better and ahead of you in a lot of other things. इसलिए इस चीज को अंडरमाइन मत करना. ये इसके अंदर होता कुछ नहीं है, 2-3 चीजें. सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे कंट्रोल में रखना है, अपने टेम्परामेंट को कैसे कंट्रोल में रखना है, विजन को कैसे शार्प रखना है. सबसे बड़ी जर्नी इन योर लाइफ इज गोइंग टू बी व्हाट इज योर एंड गोल, व्हाट डू यू वांट इन नेक्स्ट 4-5 years of your life. आई वाज क्लियर, मेरे को अपनी कंपनी बनानी है. आज के डेट में मैं वर्चुअल अपना आई एम 10 होपफुली दिस विल नॉट गो डाउन, आई विल ओनली गो अहेड. हुआ कैसे? मैं रेजिलिएंट था. हुआ कैसे? मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स, I had very effective sales skills, which I had learned throughout my life. I was filled with knowledge, and I was a very disciplined person. Discipline का रोल तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा होगा. तुमको कुछ नहीं आता तो भी अगर तुम सुबह 6 बजे उठ रहे हो, you have won the half battle. अगर तुम 9 बजे तक you are willing to go out from your home, half of the battle is won. Half of the battle is won. अगर तुम 6 बजे उठ के 9 बजे घर के बाहर चले गए, उसके बाद फिर बाहर जाके कुछ भी हो रहा है, you are learning to hustle, that's all. But वो डिसिप्लिन का सबसे बड़ा रोल तुम्हारी लाइफ में आने वाला है. इतना अब आई आई थिंक आफ्टर हर फादर एक्सपायर्ड बहुत सी चीज हुई. नाउ शी इज वेरी मच इनटू द बिजनेस. लकी फॉर मी, मैंने बहुत सारे बिजनेसेस के साथ में अपना इफेक्टिव नेटवर्क कनेक्शन बना लिया. कंपनी रिलेटिवली अब स्टेबल हुई है. और बहुत सारे लोग यार, तुम लोगों का एक विच बैच आर यू गाइस फ्रॉम? दिस इज योर फर्स्ट ईयर बैच? सेकंड ईयर? सेकंड ईयर. एक लड़का होता है स्वास्तिक, तुम लोगों के साथ में काम किया. स्वास्तिक वाज फ्रॉम योर बैच. देन देयर यूज्ड टू बी अ गर्ल हु डिड इंटर्नशिप विद अस. अभी आई थिंक मेरे को कल रिव्यू में लड़की का रिव्यू में पूछा फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट में, नाम नहीं याद आ रहा. खैर इंटर्नशिप्स काफी सारे मेरे इंस्टीट्यूट से भी काफी लोगों ने मेरे साथ में करी है. तो हाँ, एट द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक इट कि लाइफ की जर्नी जो है मोटी मोटी 5-6 चीजों से गुजर सकती है. और यही क्रक्स है. तुमको कुछ भी करना है अपनी लाइफ में, मैं तुमको स्किल्स नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं तुमको ये नहीं बता रहा हूँ कि तुमको जर्नलिज्म करना है, व्हाट इज जर्नलिज्म, व्हाट इज पीआर. फॉर द फैकल्टी इज देयर टू टीच यू दैट. आई एम जस्ट टेलिंग यू फोकस ऑन दीस थिंग्स इन योर लाइफ. सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी कभार साइडलाइन करना पड़ता है, कर दो. जब मैं इंटर्नशिप करता था, मेरे सीनियर मेरे को पानी की बोतल भरने के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट जो कुछ भी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल स्क्रैच कर दो और तुमको कुछ भी बोल देते हो, बिल्कुल नहीं है. बट आई एम जस्ट सेइंग कि फोकस ऑन द लार्जर. तुम्हारी विजन, अगर तुमको फॉर एग्जांपल 6 साल के अंदर एक एक्स पोजीशन पे पहुंचना है, तो हाउ मच आर यू विलिंग टू डू फॉर इट? आर यू विलिंग टू take anything that is going to come your way, or you are going to be like, okay, I will not do this, I will not do that. But I will do it. मेरे पास तो जो कुछ भी आया मैं लेता रहा और आगे बढ़ता रहा. I would expect you all, you guys are going to hopefully do great things in your life, and I will expect कि तुम लोग भी वही करो. ठीक है? कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, anything that you guys want to ask, anything you guys want to ask, कुछ समझ आया? Did this lecture make some sense to you? हाँ, थोड़ा सा इंस्पायर हुए, मोटिवेट हुए, लाइफ में नहीं किसी में कि प्लान कैसे चलेगा. हाँ, अच्छा, any question anything related to it can be as simple as मुझको सुबह कितने बजे उठना है या मुझको रात को कितने बजे सोना है. any question नहीं है. क्वेश्चन नहीं पूछो तो लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे भाई? Curiosity is the fundamental of life.
क्यूरियोसिटी के ऊपर ही लाइफ चलती है। अगर मैं क्यूरियस नहीं होता यहाँ कंपनी ना बनाई होती। बताओ आपका अभी का डेली शेड्यूल क्या है? मेरा अभी का डेली शेड्यूल। अच्छा डेली शेड्यूल मेरा है, मैं लगभग आई वोक अप टुडे, now I manage my other things to take care of, but today I think I woke up at 6:30, तो मैं जनरली 6:30 उठ जाता हूँ और 7 o'clock मैं वर्कआउट करता हूँ। आई नॉट डूइंग एज इंटेंस वर्कआउट दैट आई यूज्ड टू, बट मैं बेसिक वर्कआउट करता हूँ, मैं वॉकिंग नहीं करता हूँ, नहीं आधा पौना घंटा वॉक करता हूँ। उसके बाद आई गेट होम, आई हैव माय ब्रेकफास्ट एंड आई लीव फॉर ऑफिस। I have a habit कि मैं my office starts at 10, but I am in the office by 9:45, 9:50. For one very simple reason, अगर मैं 9:50 पे ऑफिस में नहीं होगा तो my people who are working for me, they will start taking discipline की fundamental बता रहा हूँ लोगों को, they will start taking the organization for granted। इसलिए मैं 9:50 पे ऑफिस पहुंच जाता हूँ और मैं सबसे लेट निकलता हूँ। 10 से अगर मैं 10 बजे ऑफिस में आऊँ तो मैं 8, साढ़े 8 से पहले ऑफिस से नहीं निकलूंगा। If I have a meeting or I have a call, then it's a separate thing। बट 10 बजे जाता हूँ, 7-8 बजे से पहले ऑफिस से नहीं निकलता हूँ, घर जाता हूँ, सो जाता हूँ। ऑफिस मेरा one good thing about my ये शेड्यूल है मेरा यार। I start my day with doing a lot of meetings, I have a lot of meetings। तो अभी तो मेरा फोन देखो तो बहुत हो चुका होगा। स्टार्टिंग का फर्स्ट जो 2-3 आवर्स होते हैं, पूरे दिन हमको क्या करना है टीम के अंदर, कंपनी के अंदर, वो मैं डिस्कस करता हूँ। My first interaction happens with my admin and accounts people। तो मैं सबसे पहले अकाउंट्स समझने की कोशिश करता हूँ, कंपनी का अकाउंट में क्या है, क्योंकि वहां पे अगर मैं हिला तो जो कुछ भी कंपनी में हो रहा है दैट डजंट मेक सेंस। सो फर्स्ट थिंग इज आई सॉर्ट माय अकाउंट्स, देन आई स्टार्ट इवेंचुअली स्टार्ट इमर्सिंग इनटू द वर्क दैट आई हैव माय टीम से जाके पूछता हूं आज किसके ऊपर क्या चल रहा है। फंडामेंटली बिकॉज़ आई एम अ स्टार्टअप तो हमेशा फायर फाइटिंग होती है, तो मेरे को नहीं पता होता, मेरे को इतना पता होता है कि मैं 10 बजे ऑफिस पहुंचना है और उसके बाद कहां फायर फाइटिंग करूंगा मैं मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम का फोकस इज की जो भी फायर फाइटिंग है उनके साथ में ज्यादा काम करूँ। मैं अपनी टीम के साथ बहुत क्लोजली काम करता हूँ, तो आई हैव नेवर, और अब तो क्या डिमेंशन भी बदल रहे हैं, पहले हायरार्की तो थी, अब तो कंपनी फ्लैट हायरार्की के अंदर काम करती है, ज्यादा टीम कलेक्टिव टीम एफर्ट के अंदर काम होता है। तो मैं अपनी टीम के साथ बैठता हूँ और मैं टीम के साथ भी काम करता हूँ। आई एडवाइज माय टीम टू नेवर सी लुक एट मी एज अ बॉस, एंड आई, और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को कंपनी चलानी है इसलिए मेरे को करना पड़ता है। Because if I understand the good, bad, and right and wrong of my team, then I will be able to take more output from it. So it is a selfish reason। अगर मेरे को अपनी कंपनी चलानी है तो ये सेल्फिशनेस मेरे को दिखानी पड़ती है। अगर मैं बॉस बनूंगा तो मैं नहीं समझ पाऊंगा मेरी टीम में क्या हो रहा है। अल्टीमेटली अगर मैं अपनी टीम से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, if I will be like कि मैं मुझे ऊपर नहीं चल रहा and I am the boss, ऐसे नहीं होगा, टीम के साथ में बैठना पड़ता है। आंसर टू योर क्वेश्चन इज फर्स्ट 2 hours, 1.5 hours स्टार्ट करता हूँ 7 o'clock, सो जाता हूँ 10 बजे, 10 बजे सो जाता हूँ। छुट्टी पिछले 3 साल में मैंने नहीं की है। ये छुट्टी है। अरे मैं देख रहा हूँ खुश रहिए। हाँ? I think when you speak to people like Dishant, I do not know how you have perceived, but to accomplish what he has accomplished is very difficult in a very short span of time. And I think that is what makes me proud as a teacher, as a mentor, and as an individual also. When you know people and people rise in life, stay in your hearts, I feel very happy. And one day I want to feel the same for all of you. And when I joined in 2011, they both are batchmates, and me and Dishant. They were in the same batch, 9-12. Yeah. And of course, he was very regular in my class. I was teaching them media research. And then he took a break. He has written books. He's an author. Have you spoken about your books? He is an author. How many books have you written? 3. Trilogy है और उसमें है The Karma Strike. मैं कर रहा हूँ Upside Down the Escape to कौन करना किस्मत। कौन करना किस्मत. And it was one of the best sellers on Amazon. 3 years that would, yeah, 3 years. He's written 3 books. Big clap for that, I think. This is what I wanted to add. He's explored different facets of life. And when he wanted to pen down what he has been through as a student, and then he, writing 3 books in 3 years, 3.5, 4 years. 3 से 4 साल. And
हैंडराइटिंग 3 बुक्स हमने एक बार लॉन्च उस किताब का रीड किया था, यहीं पे किया था 2 का, आई रिमेम्बर हमने यहाँ पे किया था, एंड मार्केटिंग योर ओन बुक, लर्निंग ऑल दी advances of marketing, PR, advertising, social media promotion to promote your book, right from publisher to distributor, everything. So that was really, I mean, is it difficult or not? एक 500 पेज की 500 वर्ड की ऑटोबायोग्राफी लिखना मुश्किल हो रहा है। कंटेंट जब शुरुआत करते हैं तो गूगल हम सबसे पहले सर्च करते हैं, हाँ करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जिशान ने वो करके दिखाया जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, और उसने मैंने नहीं सोचा था कभी कि उसकी किताब लिखेगा और 3 दिन किताब लिखेगा, एक भी नहीं। एंड द बुक्स विल डू वेरी वेल ऑन Amazon। 100 बुक्स में थी, 100 बुक्स में थी उस साल की, पॉपुलैरिटी में, रीडरशिप में, सेल्स में, एवरीथिंग। एंड देन ही ओपनड अप हिज वेंचर। You've spoken about that? I am majorly talking about Yeah. क्योंकि आजकल everybody wants to understand the journey of an entrepreneur. That is very important। स्टार्टअप कैसे शुरू करते हैं? लास्ट ईयर हमारे यहाँ आलिया की सिर्फ आपके सीनियर थे काबिल आमिर। हाँ वो मैं याद करना था वो लड़की का नाम, मेरे को याद नहीं आ रहा था। आलिया Actually, इन लोगों ने हाँ। मैं भी करता हूँ स्वास्थ्य हाँ स्वास्थ्य के मतलब 2 साल काम कर रहे हाँ हैं। स्वास्थ्य अभी वो उसमें जेनेसिस में है स्वास्थ्य। नहीं वो जेनेसिस में प्लेस हुआ था हाँ, okay, Okay, now coaching student, huh? You're coaching my student. Swastik is a Swastik was a very bright student. आपसे 2 साल सीनियर था और very bright and very bright, very committed. Then I still remember. I mean, I don't want to talk about personal things. He lost his father, and such a traumatic time for him. उसके बाद भी वो एग्जाम देके आया, लड़का खड़ा हुआ एग्जाम देके आया। And in during COVID 20 में हुआ था ये उसके साथ, 21 में, and very difficult, very bright was it? 20 में तो 21 में सब बात पड़ी। 2019 then so Swastik, you remember all this is very important to not to demotivate, to motivate you. आलिया हमें भी तुम्हारे साथ काम किया, आलिया हमें एक चश्मे वाली लड़की आई थी हमारे इंटर्नशिप में, 3 महीने से नाम क्या था? तुम्हारी मेमोरी मेरी जैसी थी नहीं मेरे को क्या कहूँ, मतलब इतना मेरे को इंटरेक्शन नहीं होता एक्चुअली। so he started his own company, and then I want to also share that he got married last year in February. Yeah, to a classmate also. I want to invite her next time. मैंने कहा था ना कल कि we invite her for next year. आई थिंक वो काफी कुछ हाँ इस चीज का तो बहुत मतलब मुझे I mean it was very I could not go मेरे को last year में बीमार थी, फरवरी में इसकी शादी थी, जैन फरवरी हाँ फरवरी कैसी शादी थी क्या थी so I could not go, and but life is a yeah, it's very beautiful and you have to explore different things. So I thought nobody could be better in motivating you than him. He's been because he did not talk about his journey. Author tha ye author 3 किताबें लिखना is not easy, and then starting your own venture. He started working very young. College में he started very young. He was very young and he started working. So I thought आजकल क्या डिमांड करती है इंडस्ट्री? You can ask questions, especially 5th semester. Internship करनी हो 6th semester में get free. Anytime. And they are serious don't do that. If you're serious, that's the most important thing. Serious, bold, underline. अब पता लगा seriousness is very important. Which is, as a student also you have to be very serious because he was non-serious at times, and I made him. I think I made him very serious as a student. I was like, very yeah. कितने कितनी डांट खाई होगी आपको तो उसका अंदाजा भी नहीं। मेरे को एक्चुअली क्या लगता है डांट तो अच्छी नहीं मतलब अगर डांट पड़ रही है इसका मतलब है कि कुछ कर रहे हो मैम चाची क्या हमारे लोगों को एनीवे सवाल पूछना तो तुम्हारी लाइफ में कोई चेंज है, ऐसा ही सवाल पूछना, बहुत सोच के सवाल पूछना भी एक आर्ट है। What would be your simple सवाल पूछना आप पूछो। What would be your advice for someone who doesn't want to do desk jobs? यार डेस्क जॉब तो हर चीज डेस्क जॉब है, ऐसा ये तो बहुत ही
it's a very simple way to look at what a job is. I'm reducing it, but basically, I don't want to sit in front of a screen for 8 Nobody hours wants to. typing away. Nobody wants to. The question is that what do you want in your life? So देख मैं तेरे को ये नहीं बता रहा. मैंने अभी जो भी तुम लोगों को बताया मैंने ये नहीं बताया कि तुमको क्या कहते हैं क्या नहीं करना. मैं सिर्फ you are always what did I tell you? कि what do you want 6 years down the line? For that you have to do a desk job. If that is the answer, then you need to do it. So अपने आप को ये चीजें बताना बंद कर दो. Mentally कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा यार मैं पानी की बॉटल भरता हूँ. तुम लोगों को अभी बताया मैंने नहीं सोचा है. अगर मैं सोचा तो मैं यहाँ नहीं था. मेरी कंपनी इतनी बड़ी नहीं है. तो डेस्क जॉब नहीं करनी ठीक है मत कर. But the larger point is what you want to do. What do you want to do? ये बताओ. नहीं पता. You need to figure out. So you know you don't want to do a desk job. Yeah. So I think what you need to ask yourself is, through that desk job, whatever it may be, does it take you where you want to be? If the answer is yes, then you need to do it. क्योंकि ऐसा ही है. और कुछ. I hope I have answered your question. Yeah. आपने कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की तो उसमें नेगोशिएशन की बात की. जी. तो एज अ फाउंडर जी. नेगोशिएशन और एथिक्स के बीच में आप कैसे जुड़ते हैं? एथिक्स यार देखो एथिक्स एक जनरल फ्रेमवर्क है. ठीक है. एथिक्स आपके लिए तो फ्रेम अलग होगी. एथिक्स की न्यूएंस बहुत ज्यादा होती है. हर कल्चर की एथिक्स अलग होती है. हर सोसाइटी की एथिक्स अलग होती है. What may not be ethical for you may be ethical for somebody sitting in US. जैसे आपने बोला नेगोशिएट करना होता है तो नहीं पर्सनल एथिक्स आपको समझने पड़ेंगे. Do you think fundamentally sales wrong है? झूठ बोल के कोई प्रोडक्ट बेचना गलत है ना. तो बिजनेस के अंदर अगर आप झूठ बोल के कोई चीज कर रहे हो तो वो बिजनेस सस्टेन नहीं करेगा. समझे? If I am today talking to you and I tell you something, so I am telling you let's say a selfie. मैंने आपको बोल दिया कि इसके अंदर 6 कैमरा, इसके अंदर 3 ही कैमरा. तो आपको आज नहीं तो बच्चा आप फैमिली का you don't know the nuances of camera, but tomorrow maybe you will figure out that इसके अंदर 6 कैमरा नहीं है, इसके अंदर 3 कैमरा है. What you are going to do? You are going to do bad marketing for me. आप तो as you are an unsatisfied customer, but you are going to tell your peers also कि यार इस कंपनी ने मेरे को बोला 6 कैमरा इसमें 6 कैमरा नहीं. मेरी कंपनी की रेपुटेशन नीचे चली गई. तो मैं एथिक्स और झूठ तो मैं बोल ही नहीं सकता हूँ. बट सेल्स इज एन आर्ट ऑफ कन्विंसिंग पीपल दैट योर प्रोडक्ट इज द ओनली प्रोडक्ट. तो मैं किसी और प्रोडक्ट के बारे में अच्छा नहीं बोलूँ. मैं बोलूँगा मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है. क्यों अच्छा है? क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर चेंज करने वाला है. Are you ready what I am saying? इसके बीच में मैं उसको कितना शार्पली बोल पा रहा हूँ. 2 मैसेज विद इन द गिवन अंडरस्टैंडिंग. सामने वाला उसके अंदर कितनी गलतियां निकाल रहा है और मैं उसको फिर भी कॉन्स्टेंटली बता रहा हूँ कि नहीं ये चीज मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ये चीज मैं सॉल्व कर सकता हूँ. इस प्रोडक्ट से ये चीज सॉल्व हो जाएगी. वो फ्रेमवर्क के बीच में एथिक्स है. वो मेरी एथिक्स है. ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि आपने ये रेड ये पहनी हुई है हुड. यू आर वेयरिंग अ रेड हुड. इट इज ब्लू एंड अपेरेंटली ब्लू विल लुक बेटर ऑन यू. देन आई एम बीइंग रॉन्ग. तो वो मैं गलती कर रहा हूँ. बट मैं आपको ये बोलूँ कि यार आपने जो रेड हुड पहनी है, मेरी कंपनी का जो प्रोडक्ट है रेड हुड, माय रेड इज मोर ब्राइटर. इज इट रॉन्ग? एंड इफ यू लुक एट द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, मेरे प्रोडक्ट के अंदर ये चीज है, इसका मटेरियल इसका मटेरियल से ज्यादा अच्छा है. इसमें कुछ गलत नहीं है. यही नेगोशिएशन है. इसके बीच में एथिक्स नहीं है. बेसिक्स ऑफ एथिक्स यही होते हैं. एथिक्स फंडामेंटली यार देखो 4-5 चीजें होती है लाइफ में. हाउ ऑनेस्ट यू आर, हाउ कंपेटिटिव एज अ ह्यूमन बीइंग यू आर, हाउ मच आर यू विलिंग टू टेक. तो मैं अगर ये सोचूं कि यू आर माय ओनली कस्टमर तो मैं आपको झूठ भी बोल दूंगा क्योंकि मेरी लाइफ आपके ऊपर यू नो आई एम डिपेंडेंट ऑन. बट व्हेन आई नो आई हैव टन्स ऑफ कस्टमर्स तो मैं आपसे मूव ऑन करूंगा, मैं दूसरे कस्टमर के पास जाऊंगा. उसके बीच में वो मेरा दिमाग है. और अगर वो दिमाग चलता रहेगा तो एथिक्स के साथ में कभी प्रॉब्लम नहीं है. आई हैव आंसर्ड और यू हैव एनी? एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि नेगोशिएशन एज अ फाउंडर अगर मेरे साथ कोई कोलैबोरेटर है, मेरी कंपनी है, मेरा कोई कोलैबोरेटर है, लेकिन वो मुझसे मतलब थोड़ा बदतमीजी से बात कर रहे हैं या फिर पोस्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो एथिकली मुझे उनके साथ काम करना चाहिए. बदतमीजी कोई चीज नहीं होती बेटा. देयर इज नो सच थिंग एज बदतमीजी. मेजॉरिटी ह्यूमंस प्रॉब्लम होता है जब लोग अपने हार्मोन्स को अपने ऊपर चढ़ने देते हैं, अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते. बदतमीजी होती है मैंने जैसे तू करके जो लाइफ में तू करके कैसे बात करी. नाउ इट इज फॉर मी
सो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे को तू करके बात कर रहा हूँ, मैं कितनी बार बोल सकता हूँ, है ना? और आई विल टेल दैट पर्सन कि 4-5 बार में 4-5 बार के बाद उसको बोलूँ यार नहीं कैसे I don't like the way you're talking, so the other person will understand. If the other person is not understanding, then you need to understand कि what is your relationship with that person. ठीक है? For example, आप आपकी अपने कोलैबोरेटर के साथ में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हम 4 वीडियोस बनाएंगे, ठीक है? इसके बीच में ये आदमी क्या कहते हैं काम टाइम पे नहीं कर रहा और आपसे ज्यादा काम कर रहा है, so that is your negotiation. अब आप negotiate कैसे करोगे इस आदमी के साथ कि यार ठीक है मैं शायद तेरे को फोन करके 2 बातें बोल देता हूँ, बट इन रिटर्न आई एम गेटिंग माय 4 वीडियोस ऑन टाइम, और उसकी वजह से मैंने शायद आपसे थोड़ी सी गलत तरीके से बात की, बट डिड इट सॉल्व द पर्पस ऑफ गेटिंग 4 वीडियोस ऑन टाइम? इफ इट डिडंट गेट द पर्पस सॉल्व, उसका भी पर्पस अगर सॉल्व नहीं हुआ है तो वो रिलेशनशिप फ्यूटाइल है। तो इसका मतलब आपने जो कोर ऑफ रिलेशनशिप बनाया था वो सक्सेसफुल नहीं था। मेजॉरिटी कंपनीज इन चीजों को अवॉइड करने के लिए पहले डॉक्यूमेंटेशन, सो दैट योर डॉक्यूमेंटेशन बिकम्स योर पासवर्ड। तो इसको ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ना है, इसलिए आपको पहले किसी से भी बात करने से पहले अपनी कोलैबोरेटर को फॉलो डाउन करना पड़ेगा और एक क्लियर ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा कि आप दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कि यार मेरे को 10 दिन के अंदर ये वीडियो करनी है, you will do it in 10 days, I will do my work in 5 days, और अगर ये नहीं होगा तो let's say 20% cut from your pay. So those are the negotiation skills that you need to understand. और बेस्ट वे आउट हमेशा ये होता है कि पूरा फ्रेमवर्क बना दो केवल किसी भी रिलेशनशिप को आगे लेके जाने, ठीक है? Does that make sense? Does that make a bell? Anything? So how can you find a path for yourself when you have no clue? When you have no clue, अच्छा ठीक है, when you have no clue, इतना तो पता है कि रोटी खानी है, इतना तो पता है कि अपनी इमीडिएट सर्कल के बीच में तुमको सर्वाइव सस्टेन करना है, इतना तो पता है ना तुमको। फॉर एग्जांपल यू हैव 5 फ्रेंड्स, यू वांट टू गो टू मैकडॉनल्ड्स, अभी शायद माँ बाप से पैसे ले रहे होंगे, कल को तुमको खुद चाहिए होंगे, उन लोगों के साथ अगर तुमको मैकडॉनल्ड्स जाके बर्गर खाना है, सो यू विल नीड एन एक्स अमाउंट ऑफ मनी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट सोशल सर्कल। Even if you don't have a clue, you will know you have to go out with your friends. You have to take care of the needs of your family sooner or later. उसके लिए तुमको क्या करना है, ये तो करोगे अपनी लाइफ में, ये सब चीजें तो करना चाहते हो ना, अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहते हो, अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहते हो, गाड़ी खरीदना चाहते हो, है ना? करना चाहते हो ना? ये भी नहीं है या फिर ये हिमालय में योगी बनना है, वो बनना है तो भी इट्स ओके, बट उसके लिए भी एक बात है ना। Even if you want to be a yogi on Himalaya, therefore that also there is a path. तो ये चीजें करने के लिए तुमको अपनी लाइफ में क्या करना पड़ेगा? तुमको पैसा कमाना पड़ेगा, पर पैसा कैसे बनाना? तुमको करियर चूज करना पड़ेगा। अब तुम्हारा सवाल ये है कि मेरे को ये नहीं पता मेरे को क्या करियर करना है, पर तुमको ये तो पता है कि तुमको पैसा कमाना है, तो पैसा कमाने के लिए नौकरी करनी पड़ेगी। सिंपल वे आउट है, जब तक तुमको नहीं पता ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा सोशल स्टेटस मेंटेन हो और तुम्हारे कलेक्टिव स्किल्स बनते रहे। समझ रहे हो? जब तक ये स्किल्स तुम्हारे बन रहे, इवेंचुअली यू विल फिगर आउट व्हाट यू वांट टू डू। डज दैट मेक सेंस? कोई काम का क्वेश्चन? जब आपने बुक लिखना शुरू किया था, तब आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब आप कैसे डिसीजन पे आए कि अब मुझे लिखना है? यार आई वाज लाइक आई सेड, मैं पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर के अलावा मैं किताबें भी बहुत पढ़ता हूँ। तो अगर तुम मेरे कभी, मेरी लाइब्रेरी जो है घर पे, मेरे पास लगभग 1000 बुक्स का कलेक्शन है। तो आई ऑलवेज हैड अ हैबिट ऑफ रीडिंग, बहुत पढ़ना था। और बिकॉज आई वाज एन एविड रीडर, जो लोग भी जिनको रीडिंग की हैबिट होके सम डे दे वुड वांट टू राइट, ऐसा देखा है मैंने मेजॉरिटी टाइम। वो अगर कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, उसको कमर्शियली वाइबल आप बनाना चाहते हो, नहीं बनाना चाहते, बट मेजॉरिटी रीडर्स दे वांट टू राइट और दे वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो मेरे तरफ से क्रिएशन इनहेरिट एक अर्ज, medium can be writing true or wrong, but I wanted to create. That's why I created a company. क्योंकि मुझको क्रिएट करना, मैंने नॉवल इसलिए लिखी क्योंकि मेरे को एक अंदर से एक डीप अर्ज टू क्रिएशन। पर इस वजह से आई थिंक बिकॉज आई वाज अ रीडर, आई वाज लाइक दिस इज द क्लोजेस्ट आई कैन बी टू समथिंग।
and this medium will help me become a better person inside. यही होगा? हाँ। 11 बज गए है ना, 5 क्लास 5 क्लास 5 So basically I started working for a startup only. You have started working with the startup? Yeah. अच्छा, वाओ, क्या करती है वो? It is the digital marketing agency. Digital marketing करती है, super. So basically right now I'm working as an intern. If I have a choice to work after 3 months and for that only. यार अभी कैसे ये तो तुम मेरा ईमेल एड्रेस दे, मेरा ईमेल एड्रेस दे, अभी बाहर मेरे से मेरा ईमेल एड्रेस दे और बात करते हैं। इंटर्नशिप के लिए पूछ रहे थे ना? नहीं, इंटर्नशिप में करना है, इसके बाद मैं काम भी करूंगा इन दैट सेम कंपनी ओनली आफ्टर 3 months. So basically अभी क्या है, जैसे what role I want to do, they have given me some other like research and first of all researching about the potential. They are not giving you what you want to do. Yeah, but in the start only because they feel that I will be better in that route. So should I continue because कंपनीज फीलिंग पे नहीं चलती है, कंपनीज कभी भी फीलिंग्स पे नहीं चलती। सो ये मत सोचो कि कंपनी कुछ फील कर रही है, क्योंकि कंपनी कुछ फील नहीं करती है। तो तुम्हारे जो इमीडिएट सीनियर्स होंगे वो फीलिंग्स पे नहीं चलेंगे, उनको अपने काम से मतलब है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। सुन रहा हूँ मैं, आगे बताओ। So basically, that, like I've given the work of, they've given me the work of pitching to clients. First of all, researching about the potential clients, then approaching them, then pitching to them. But like research में there's lot of work. So अभी मेरी इतनी उसमें determination नहीं हो पा रही. So is there any way like I keep on going to that, doing that so that later on I will obviously they will say that they would like to. I would also work in the field I want to, but right now they want me to work in this field. So उसके लिए how should I go about it? Yeah, so you want to change the department in which you are currently being asked to work in. Yeah. That is a simple question. Yeah. At the same time, they are not letting you do it. Yeah. Not है ना? और आपने उनसे पूछा है, आपने इस बारे में बात करी है? हाँ. Yeah. आपको कितने दिन हो गए इंटर्नशिप करते हुए? It's been like about 15 days right now. 15 दिन के अंदर। So they guarantee your career is going to be at least 65. You are at 19. 15 दिन के अंदर तुमने फिगर आउट कर लिया कि तुमको क्या करना है इससे। 65 साल तक तो काम करोगे, 65 साल तक काम करेगा, 70 तक चलिए। हम तो सरकारी नौकरी है, काम क्या It is an individual way of looking at it. But anyway, क्या सवाल था आपका? हाँ, 15 दिन में first of all you will not be able to figure out that what you want. कितनी बड़ी कंपनी? It's मुझे valuation तो नहीं पता. Evaluation की बेटा कंपनी के अंदर कितने लोग हैं, कितने डिपार्टमेंट हैं? It's like we have web development, social media कितने लोग marketing. हैं? It's about 7 right now. 7-7 लोग हैं ना? हाँ, तो तुम्हारे पास सबसे बोरिंग काम है, तुम्हारे कहने का मतलब ये है, जो कोई भी नहीं करना चाहता। ऐसा हो रहा है ना? है ना? ऐसा होता है। जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना अच्छा है। Now where your effectiveness comes, but तो मतलब लोगों को बताना चाहिए, तो तुमको पता है तुमको क्या करना है। Now the question you need to ask yourself, whatever first thing is, take simple solution, you need to speak to your team. थोड़ा सा उनको जाके negotiation यूज करो और उनको बोलो कि यार मेरे को ये करना है, आप मेरे को अभी मत करने दो, 15 20 दिन के अंदर मेरे को ना दो। या फिर जब कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है और जिसका तुम पार्ट बनना चाहते हो, बीच में अपने इनपुट दे, सामने वाले को अगर वैल्यू दिखाई देगी तो वो तुमसे पूछना शुरू कर देगा। अपनी जगह बनानी पड़ती है, कोई भी तेरे को देगा नहीं कि तू इंटर्नशिप कर रहा है मेरे को देगा, ऐसा कभी नहीं। ये तुम्हारे घर पे भी नहीं होता होगा यार, मम्मा भी नेगोशिएट करेगी तुम्हारे साथ कि बेटा तू ये खा ले, तू बोलेगा मेरे को ये नहीं खाना, नहीं खा ले, खा ले, अच्छा होता है सेहत के लिए। बोला मम्मा आप बताओ, मम्मा भी लाइक खा ले, ऐसी की तैसी। यही होता है ना, वो नेगोशिएशन हार गया। अब वही वो नेगोशिएशन की बोलेगी मम्मा अच्छा आप अभी ये दे दो, रात को मेरे को ये खाने को दे दो। मम्मा भी लाइक ठीक है तो रात को ये नेगोशिएशन की बात है। सेकंड थिंग, व्हेनेवर देयर इज अ कन्वर्सेशन हैपनिंग इन योर ऑफिस जिसमें तुमको लगता है तुम वैल्यू ऐड कर सकते हो, वहां पे वो वैल्यू ऐड करने की कोशिश करो, सामने वाले को तुम्हारी इंपॉर्टेंस शायद समझ आ जाएगी और तुम उस रोल के अंदर फिट हो। ठीक है, अपने आसपास के लोगों की प्रॉब्लम को सुनने की कोशिश करो। और किसी भी कंपनी में काम करने का फंडामेंटल होता है
तुम्हारे आसपास जो भी काम हो रहा है उनकी जो प्रॉब्लम्स है ना, कान लगाओ और उनकी प्रॉब्लम्स को सुनो और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो उनके लिए, उससे वो तुम्हारे अंदर वैल्यू देखेंगे। समझे? तो ये इतना सिंपल नहीं होगा कि ये 15 दिन हुए मेरे को ये नहीं करना, ये तुम गिव अप कर रहे हो। यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि यार मैं अगर 3 महीने यहाँ पर हूँ, मैं वो 15 दिन 20 दिन मेरे को मिलते हैं जो मैं एक्चुअली करना चाहता हूँ। वो उस मोटिव के साथ अगर काम करोगे और लाइफ विल बी मच मोर इजियर, योर वर्किंग स्टाइल विल बी मच मोर इजियर। मेक सेंस? यस। चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। एनीबॉडी? हाँ जी, आप दो। हाँ, फिक्शन उससे टाइम हो I started writing my novel in 2016. So you're asking the time period of that fiction that I have written. This current time. Silence! When did I write it? ये इसके ऊपर मैं तुमको पूरा लेक्चर दे देता हूँ। मतलब ये इसका आंसर मेरे को 2 मिनट बट आई यूज्ड टू राइट, जब मैंने फर्स्ट नॉवल लिखी थी तब मैं आई वाज नॉट एम्प्लॉयड, आई वाज नॉट एम्प्लॉयड फॉर अ लॉट ऑफ टाइम। सेकंड नॉवल के टाइम पे बट फर्स्ट नॉवल आई रोट व्हेन आई वाज नॉट एम्प्लॉयड। दिन के 5 से 6 घंटे स्पेंड करता था लैपटॉप। I think you should get the books, read them. You will understand a lot more. Yes. Also, okay, to sum it up, Nishant, it was a pleasure having you. And I'm proud. Life is a journey, right? You will fall, you will make mistakes, you will face, definitely you will face failures. But the important thing is to learn from them, rise from them. So you will have to keep trying. ये जो तुम्हारी छोटी-छोटी चीजें ना कि immediate success चाहिए, immediate responses चाहिए, immediate results चाहिए, it is not going to happen in a day or night. It is a journey, and you will have to go through that journey to reach to a particular position, right? So Nishant, you go.